بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درم تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں نورانی جماعت، جنتیوں کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت جلوگر ہے، اور یہ بڑی بابرکت جماعت ہے۔ مولا کریم اس جماعت کا سایہ امت کے سر پر تھا در میں زیست قائم و دائم رکھے۔ ہاں یہ بات ذرا غور سے سنیں جو میں بتانے لگا ہوں، یہ وہ جماعت ہے اللہ جس کے قدموں کی برکت سے زمین کو عمر دراز دے رہا، ورنہ فرمایا گیا اگر علماء نہ ہوں تو قیامت آ جائے۔ یہ عظیم جماعت اور بڑے مخلص علماء کرام ہیں، ہو سکتا ہے میری نیت میں کچھ غرض شامل ہو، جتنے بھی بلائے گئے مہمان پڑھنے کے لیے بولنے کے لیے ان کی نیت میں غرض شامل ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو بے غرض علماء بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ان کا آنا باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور جتنے لوگ آپ آئے ہیں آپ بھی یقیناً محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شاید پردہ اتارنے آئے ہوں کہ یہ میرے ابا کے 40ویں میں آئے تھے، ہم ان کے ابا کے 40ویں میں جائیں گے، تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ اگر ایسے نہیں ہیں تو ذرا منہ کھولیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ کنپورہ مسلمانوں کا ہی گاؤں ہے، مسلمان ہی رہتے ہیں نا یہاں پہ، ہاں تو اماموں نے کم سے کم اتنا تو بتایا ہی ہوگا سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر بول سکتے ہیں تو بول کے دکھائیں ذرا، آگے والے نہیں پیچھے والے بھی تھوڑی سی چادر کھولیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک اندر کی بات بتاؤں، شاید کسی نے نہ بتائی ہو۔ سردیوں میں محنت کرتے ہیں نا تو پھر بدن گرم ہوتا ہے، یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں میں، دیش پلٹنے کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، حکومت گرانے کی بات نہیں بتا رہا، بہت اندر کی بات بتائی۔ اگر بولیں گے تو گرمائی آئے گی، جب گرمائی آئے گی نا تو پھر چادر پھینک دیں گے۔ آپ ذرا بول کے دکھائیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے چچا کے بال سفید ہیں لیکن انہوں نے بھی ہمت کی ہے۔ اگر چچا بول سکتے ہیں تو جوان کیوں نہیں بول سکتا بھائی؟ لوگ کہتے ہیں آج کل کے جوانوں سے بوڑھوں کا بڑھاپا اچھا ہے، ایسی بات ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ کہو گے جب سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہو تو یہی کہہ کے پیچھا چھوٹے کہ ہم سے تو بوڑھے ہی اچھے۔ ذرا بول دیں زور سے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے میں سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کنویں میں بالٹی ہوتی ہے، رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے پہلے بڑے اچھے اشعار آپ نے قاری صاحب قبلہ سے سماعت کی، اور یقیناً اشعار تھے اگر سمجھنے والے ہوتے تو دل میں اتر رہے تھے۔ اللہ سلامت رکھے، عمر دراز عطا فرمائے قاری صاحب قبلہ کو۔ بھائی طیب صاحب یہ ہمارے بچپن کے کلاس میٹ رہے ہیں، وہ بات الگ ہے کہ اب لائن بدل گئی ہے، یہ ڈاکٹر ہو گئے اور مولوی لائن میں ہے، مگر اگر چاہیں تو یہ بھی نیک کام کر سکتے ہیں۔ اگر غریبوں کا فری علاج کریں تو اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا، سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں آپ پیسے بالکل مت دینا مولویوں کو، کیونکہ آپ کے وہ کسی اور کام آ سکتے ہیں۔ ذرا آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے، جن کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم بھی نہیں، ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے، ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فخر ہے ہمیں کہ ہم حضور کی امت میں پیدا کیے گئے، ورنہ وہ لوگ بھی دنیا میں آئے جو خود نبی اور رسول ہوئے لیکن آرزو یہی رہی اللہ محمد کی امت میں پیدا کر دے۔ یہ فخر کی بات نہیں کہ کبھی ہم نے دعا بھی نہیں مانگی، اور کبھی ہم نے راتوں کو اٹھ کے یہ بھی نہیں کہا تھا اللہ محبوب کی امت میں بنا دینا، کچھ نہیں کہا، نصیب کی بات ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے، قاری صاحب نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو محمد کی امت میں پیدا ہو گیا۔
इससे बड़े नसीब की बात कौन सी है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। हाँ मैं गुनाहगार सही, मुजरिम बदकार सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीमा तेरा, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीमा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज एक मरहूमा के इसाले सवाद के सिलसिले में यहाँ बैठे हैं। यकीन जानिए एक दिन वो भी आएगा, हम नहीं होंगे लोग होंगे। हमारी आंख बंद होगी, मस्जिदों से ऐलान होगा आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा। इससे पहले कि ऐलान किया जाए हम उस दिन की तैयारियां कर लें। मैं अक्सर अपनी कौम के सामने कुछ दर्द की बातें रखता हूं, लेकिन सच्ची बात है मैं ये चाहता हूं कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही सोच करके गांव गांव शहर शहर, शायद हिंदुस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं जहां मैं ना गया हूं, और हर जगह जाकर के सिर्फ यही कोशिश रहती है कि जिंदगी ऐसे गुजारें जिससे मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए। यही कोशिश रहती है। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें रिश्तों में जोड़ा, बंधनों में जोड़ा, और ऐसे रिश्तों में जोड़ा कभी बाप बेटे का रिश्ता बनाया, कहीं भाई भाई का रिश्ता बनाया, कहीं चचा भतीजे का रिश्ता बनाया, किसी रिश्ते को दादा पोते का नाम दे दिया, किसी रिश्ते को माँ बहन का नाम दे दिया, किसी रिश्ते को अजीब ऐसी कशिश अल्लाह ने रिश्तों में रखी कि आदमी कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि रिश्तों के बगैर टूट भी जाता है। लेकिन ये देखा जाता है कि रिश्तों की कदर तभी होती है जब हमसे रिश्ते छूट जाते हैं, उनके जीते जी हम कदर नहीं कर पाते, उनके जीते जी हम लोग रिश्तों की कदर नहीं कर पाते। वो यार खुदा ने जिंदगी दी है और रिश्तों के दामन से जोड़ा है तो हमें रिश्तों की कदर करनी है। लेकिन एक बात पहले बता दूं, रिश्ता वही कबूल किया जाएगा जो हुजूर के दामन से जुड़ा होगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें, जो हुजूर के दामन से जुड़ा होगा। हमारे कुछ भाई ये कह के लोगों को गुमराह करते हैं, वो इतनी सख्ती क्यों मिजाज में, इतनी सख्ती क्यों मिजाज में। हुजूर ने तो कूड़ा फेंकने वालों को भी दुआएं दी, मैं कहता हूं बेशक दी, लेकिन ये सारी दुआएं हिजरत से पहले थी। जो लोगों ने कूड़े फेंके, जो लोगों ने कांटे बिछाए, हिजरत से पहले का हाल था। हिजरत के बाद बता, किसी ने नजर भर के भी मेरे हुजूर को देखा हो तो बता। किसी में जुर्रत नहीं थी, जब उमर की तलवार नियाम से बाहर हुई ना, तो फिर किसी में बोलने तक की ताकत नहीं थी। अपने भी जब जाते थे तो हुक्म होता था पहले गुस्ल कर, फिर 2 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद सदका दे, फिर तू मुस्तफा की चौखट तक जा सकता है। ये अपनों के लिए हुक्म था, फिर गैरों की इजाजत कितनी होगी। बड़ी आसानी से कह देते हो कि हुजूर के लिए इतनी सख्ती। हाँ खुदा की कसम, हम जीते भी उनके लिए हैं, मरते भी उन्हीं के लिए हैं। अगर उनसे रिश्ता नहीं तो फिर किसी से रिश्ता नहीं। किसी ने हमारी मेहनत थोड़ी काटी है, बताओ। किसी ने बैल खोले हमारे, भैंस बेच दी किसी ने खोल के, कोई दुश्मनी हमारी, सिर्फ इतना ही तो झगड़ा है। ओ यार हुजूर को ऐसा मान जैसे मानने का हक है, इतनी तो बात है। बिला वजह का हवा बना रखा है, आला हजरत को एक तूफान बना दिया। नहीं भाई, आला हजरत ने अपनी तरफ से कुछ नहीं छापा, बताया ही तो था लोगों हुजूर को मुर्दा ना करो, वो जिंदा है। इतना कहना गलत था, बोले आप। मैं कभी ये नहीं कहता मेरी महफिल में वो ना आए वो ना आए, सब आओ, लेकिन इंसाफ की ऐनक लगा के रखो। बात सच्ची है तो दिल पे लेके जा, अगर गलत लगे तो वापस कर जा। यहाँ गाली गलौज का कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ बातें करने के लिए बैठे। सुने, सिर्फ इतना ही तो कहा था कि हुजूर को जिंदा मानो, हुजूर को नूर मानो, हुजूर गैब की खबरें देते हैं। क्या ये गलत कहा था? जो वक्त से पहले कयामत का हवाला दे दे, वो अगर गैब जानने वाला नहीं तो फिर कौन होगा? तो ये बातें कहकर के आला हज़रत को बदनाम ना करो। और जब ना माना किसी ने और फिर भी अपनी हरकतों पे लोग जरी रहे, तब आला हज़रत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये तो बात की बात है। ओ भाई आओ मुस्तफा के दामन से जुड़ जाओ। मैं कहता हूं सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा, कम से कम अकीदे दुरुस्त करो, नियतें दुरुस्त करो, अल्लाह तौफीक दे, हालात अच्छे करो। ओ यार बातें तोड़ने की ना किया करो, बातें जोड़ने की किया करो। हमें कोई ये ना कहा करे कि हम आपस में लड़ाने के काम करते हैं, लड़ाने के नहीं, हम तो मिलाने के काम करते हैं।
मोहब्बतें पैदा करो, आपस के इख्तिलाफात खत्म करो, हुजूर से प्यार करो। ये रिश्ते तभी मकबूल होंगे जब हुजूर के दामन से वाबस्ता होंगे। जो हुजूर का नहीं वो हमारा, बोले वो हमारा। क्यों नहीं बोल रहे भाई? जो हुजूर का नहीं वो हमारा, सारे बोले जो हुजूर का नहीं वो हमारा, जो हुजूर का होगा वो, सुभान अल्लाह, जो हुजूर का होगा वो हमारा होगा। रिश्तों की कदर करनी है, और जो रिश्ते हुजूर ने दिए हैं वो रिश्ते हमें जान से प्यारे हैं, हमें दिल से प्यारे हैं। मेरी बात गौर से सुनना। आज एक खातून के इसाले सवाब के लिए हम यहाँ बैठे हैं। मैं बहुत कम वक्त में बातें अपनी मुकम्मल करूंगा। लोगों, अल्लाह तौफीक देना तो माँ की कदर करना। अल्लाह तौफीक दे तो माँ की कदर करना। इसलिए कि हम सोच भी नहीं सकते, माँ एक औरत ही तो है, और औरत पे किस दौर में लोगों ने जुल्म न किया। बहुत गौर से सुनना, किस दौर में लोगों ने जुल्म न किया। बेटी पैदा हुई तो खानदान वालों ने कहा बड़ा भागा है, बेटी आई है, क्या ही अच्छा होता बेटा आता। बेटी को रुसवा किया गया। बेटी की पैदाइश पे लोगों ने कहा पहली बच्ची है, मुंह मीठा करा। तो घर वाले कहते हैं बेटा होता तो जो चाहते खिला देते। खुदारा, बेटियों के साथ ये जुल्म मत करो। हम क्या सोचते हैं कि बेटियां जिन घर में आती हैं उन घरों में बरकत नहीं होती। खुदा की कसम, जब बेटा पैदा होता तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो हुक्म होता जा हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे। कब बेटियां ना सताई गई? तो यार औरत को मनहूस कह दिया जाता सिर्फ उस बुनियाद पे कि बेटी पैदा हुई है। खुदा की कसम, अगर बेटी मनहूस होती तो मेरा रब महबूब के आंगन में कई फूल ना खिलाता। अगर बेटी रहमत थी तभी तो रब ने ज़ैनब दी, बेटी रहमत थी तभी तो रुकैया दी, बेटी रहमत थी तभी तो उम्मे कुलसूम दी, बेटी रहमत थी तभी तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा अता की गई। अगर बेटी रहमत ना होती तो रब महबूब के आंगन में 4 बेटियां ना देता। और आज बेटी की पैदाइश पे गर्दनें झुक जाया करती है। हमें शर्म आनी चाहिए। मुझे पता तो सही, जिस बेटे की पैदाइश पे तू लड्डू बांटेगा, जिसकी पैदाइश पे तू जश्न मनाएगा, क्या दिया इस बेटे ने? कभी पहलों की तारीख उठा के पढ़ लिया कर। मोहल्ले में जब किसी बाप का गिरबान पकड़ा जाए तब बेटी का माथा चूम लिया कर। जब कोई बेटा बाप को गाली दे तब बेटी का माथा चूम लिया कर। जब कोई बेटा बाप को धक्के मार के घर से निकाले तब बेटी का माथा चूम लिया कर। और सजदा किया कर कि रब का शुक्र है कि उसने बेटा नहीं दिया बल्कि बेटी दी है। जब दुख आते हैं तो बेटे धक्के देते हैं, जब मुसीबत आती है तो आके बढ़ के बेटियां सीने से लगाया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी बेटियों को इसलिए बुलाया नहीं जाता है कि उनके बदन से 3 बेटे पैदा हो गए हैं, इसलिए ससुराल वाले बुला के नहीं ला रहे हैं कि तुझसे सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं, तू घर में रखने के लायक नहीं है। जबान को लगाम दे जालिम, तूने औरत को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि बच्चियां पैदा हो रही हैं तो इसकी वजह से हो रही हैं, लड़के पैदा होते तो इसकी वजह से होते। पूछ इन उलमा से कभी आके पता कर लिया कर। कुरान तो फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां दिया करता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं देता है। अगर ये रब के करम से है, उसी के हुक्म से है, तो जिम्मेदार ये कैसे है? अगर औरत जिम्मेदार है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार तो तू है कि बुनियाद तेरी वजह से है। अगर बेटियां पैदा हो रही है तो तेरी वजह से हो रही है। किसी की बेटी को आग ये कह के ना लगा कि सिर्फ बेटियां पैदा की है, किसी की बेटी को घर से ये कह के न निकाल कि सिर्फ बेटी पैदा की है। अगर आग लगानी है तो अपने आप को लगा, घर से निकालना है तो अपने आप को निकाल। तुझे हया तक नहीं आती है, सिर्फ बेटियों की बुनियाद पर किसी की बेटी को बेआबरू न कर, किसी की बेटी को घर से न निकाल। तुझे पता क्या है? मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और इसलिए कहा था ताकि क़यामत तक आने वाली उम्मत अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा कह दे। आज अगर कोई बेटी पे जुल्म करता है तो कोई जाने ना जाने मदीने वाले को इसके दर्द का एहसास पहले हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कहना, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। दौर में बेटी न सताई गई, बहुत अच्छे। जिसके जी में आता बीवी का कान पकड़ा निकाल दूंगा। क्यों भाई, सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं। मुझे सच्ची बता, अगर बेटियां ना होती तो तेरे घर में बीवी कहां से आती? ये बता ना, ये कहां से आती? वो खुदारा बेटे इसलिए मांगते हो ना कि बुढ़ापे में लाठी मजबूत होगी, इसलिए मांगते हो कि ये रोटी का सहारा बनेगा, ये टुकड़े देगा खाने। और याद रख, अगर बेटा दुनिया का सहारा है तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। हाँ, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं। वो क्या था, वो किसी ने बीवी को कहा था ना, जब उसके वतन से 6 बेटियां पैदा हुई, उसने कहा अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो बेटी को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। ये बात कही, अगर बेटी पैदा हो गई ना 7वीं घर से निकाल दूंगा। औरत बड़ी नाजुक होती है, कभी शौहर की शिकायत पड़ोस में नहीं करती। अगर उस पर जुल्म भी होता है तो कभी घर से निकल के नहीं कहती कि मेरे शौहर ने मुझे 3 दिन से रोटी नहीं दी। अगर वो रोती है ना तो सिर्फ अपने रब को याद करके रोती है, ये याद रखना। वो रोती है ना अपने रब को याद करके रोती है, वो किसी से जाके अपनी मन्नत और समाजत नहीं करती। अल्लाह अकबर, उसने कहा ना अगर बेटी पैदा हुई ना 7वीं तो घर से निकाल दूंगा, तुझे कत्ल करूंगा। इतनी सी बात कही थी, औरत थी, रोने लग गई, मुसल्ला बिछा दिया, कहने लगी या अल्लाह मैं माँ हूं, तूने एक बेटी दी मैंने दामन में संभाली, तूने दूसरी बेटी दी मैंने उसे भी संभाला, तूने तीसरी दी मैंने शिकवा नहीं किया। या अल्लाह तूने मुझे 6 बेटियां दी, तुझसे कभी शिकवा नहीं किया, 7वीं भी बेटी दे देगा मालिक, मैं तेरी रजा से राजी हूं। मगर मेरे मालिक, मेरे शोहर ने कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा होगी तो बेटी भी कत्ल की जाएगी और तुझे घर से निकाला जाएगा। वो कहने लगी या अल्लाह अगर सिर्फ घर से निकालने की बात होती तो मैं धक्के खा के जिंदगी गुजार लेती, लेकिन माँ के सामने बेटी कत्ल होगी, माँ से बर्दाश्त ना होगा। या अल्लाह या तो 7वां बेटा दे दे या अपने कर्म से मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। अल्लाह अकबर, इतनी बात खातून ने कही। तो याद रखना, जब कभी बंदा रोता है ना तो वो हमारा रब लाखों रुपए से भी नहीं मानता, अगर मान जाता है तो 2 आंसुओं से मान जाया करता है, आंसू के 2 कतरों से मान जाया करता है। रो के इतना कहा था या अल्लाह या तो बेटी दे दे, बेटा दे दे, या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। ये सोया क्या देखता है, मैदान क़यामत है, हिसाबो किताब का नंबर लगा हुआ है, इसका भी अमल तोला जा रहा है। जब अमल तोला गया तो इसके अमाल में गुनाह ही गुनाह थे। हुक्म हुआ फरिश्तों इसे दोज़ख की तरफ लेके चलो। ये ख्वाब देख रहा है कि फरिश्तों ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे दोज़ख की तरफ लेके जाने लगे। जब दोज़ख की तरफ लेके गए, पहले दरवाजे पे पहुंचे तो कहता जहन्नम के 7 दरवाजे थे, अल्लाह ने मुझे 6 बेटियां दी थी। कहता जब पहले दरवाजे पे गए, ख्वाब में क्या देखता हूं, मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, कहती या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मजदूरी की कभी घर से निकलने ना दिया। या अल्लाह लोगों की धक्के खाता रहा लेकिन कभी मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने दिया। या अल्लाह खुद ने फटे कपड़े पहने लेकिन मेरे बदन को दिखने ना दिया। मेरे मालिक, इसने तो नंगे पैर जिंदगी गुजारा लेकिन कभी मेरे सर से दुपट्टा ना उतरने दिया। या अल्लाह अगर ये दोज़ख में जाएगा मेरे मालिक मुझे तकलीफ होगी। या अल्लाह एक बेटी ये कहती है या अल्लाह मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। कहता फरिश्तों ने हाथ पकड़ा, वहां से हटाया। जब दूसरे दरवाजे पे दोज़ख के लेकर के आए हैं, वहां दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। वहां से फरिश्तों ने हटाया। कहता तीसरे दरवाजे पे लेके गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी, का वहां से हटाया। चौथे दरवाजे पे लेके गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी थी, छठे दरवाजे पे 6ठी बेटी थी। कहता जब छठे दरवाजे पे लेके गए तो बेटियां 6 थी लेकिन जहन्नम के दरवाजे 7 थे। का जब छठे दरवाजे से हटाया है, 7वें दरवाजे पे लेकर के आए हैं, कहता मेरी चीख निकल जाती है। 7वां दरवाजा खाली था इसलिए कि बेटियां सिर्फ 6 थी, दरवाजे 7 थे। का जैसी मेरी चीख निकली है, आंख खुल जाती है। मैंने आंख खोली है, मैंने देखा पूरा बदन पसीने में था। मैंने फौरन सजदे में सर रखा और रो के कहा था या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये आलम था, फिर खुदा ने उसको अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।